After the power pack session of the day, for the first day and the second session, I think it was very enlightening. And for the third session, it is upon funding growth in GCCs, capital infrastructure and incentives. And to start with, I request the respected Central Council member, CA Dayaniwas Sharma sir, and CA Arpit Kabra sir to escort the learned faculties for the session, CA Swetang Pandya sir, CA Naresh Kella ji, and Mr. Hiranmay Mahanta, CEO of iHub, Gujarat. Okay, other two learned speakers would be joining the session in a while. And also I request respected Central Council member, C. Anuj Goyal sir, to join the team on the dais. Thank you, sir. It's my honor to introduce the faculties for the session. I think they are not just the eminent speakers of the day. They are living that life, what they are doing. They are enjoying, and that's how they are delivering to their best. So it is the first CA Swetang Pandya. He is Chief Executive Officer of Swetark Consultancy Services Private Limited. He is also the chairman of the Swetark Group, which is a highly experienced professional with over 25 years in the field, having mentored more than 350 chartered accountants. Recognizing the potential of IFSCA in GIFT City in 2020, he established the Swetark Group of companies in GIFT IFSC, a global financial services platform. This platform, comprised of over 40 chartered accountants, many of whom are his former students, integrates wealth management, consultancy, and business solutions, all under the guidance of expert chartered accountants. The company core philosophy is encapsulated in the Sanskrit phrase, Kritsnam Vishwam Vyapunhi, which translates to, the world is our canvas. So with big round of applause, Swetang sir, we welcome you. And now I request CA Dayaniwas Sharma sir to please come forward and deliver his opening remarks for the session. Dayaniwas sir. Good afternoon to all. Compliments to the committee with regards to holding this particular conference in Ahmedabad, which is one important location at the country level. Rather than taking names of all, I would like to just stick on to my discussion with regards to the topic which is going to be discussed today. The speaker is going to join us shortly, but however, we still have the liberty to discuss certain interesting points to go forward. The topic is funding growth in GCC, capital infrastructure and incentives. It is very interesting point at this stage where the globe is looking at India as the GCC centers. Primarily yesterday also in the news, there was a discussion that what world may say, but India is still going to be the superpower. Superpower primarily comes from a perspective where the youth, which is driving the entire nation, that need to be groomed well so that the outcomes which are going to come out are going to come in a true sense. Friends, it is not matter of funding with regards to infrastructure alone. I think nation has to move towards one important factor, the funding towards the education system, which ultimately will give a right output. So the source starts from the schooling or might be the college, which primarily are looking in. So from a GCC perspective, when we are looking at, lot of big companies are going to the colleges directly and they are recruiting people, graduates from that particular point. So today when we are looking at, एक ज़माना था जहाँ पे लोग बोलते थे पहले पढ़ाई ख़त्म करो बाद में कमाई चालू करेंगे. But now when you are looking at an opportunity, it's basically before they complete their graduations, the big offices or corporates or the professional servicing firms are reaching out to the universities and trying to pick up those people, the talent people from that time itself. Just to tell you one fact, this was the change which ICAI has got when we thought about introducing the course of foundation. So catch the talent at a young age. That was one very important thing which we should not forget. Might be GCC picture on the other side is very huge,
and the opportunities are larger. But I think each one of us who are chartered accountants have to focus on how do we go and contribute towards the youth who can become an employable youth. So the first funding or investment of your time is going to start from that college time. Then you talk about when a right quality resource is being put for the market, and this employable youth is going to actually take the things forward, this GCC will actually become successful, which we all have to understand very importantly. So the investment starts from the source, then goes for an opportunity where talent pool has to come together to showcase that when we talk about Naya Bharat or might be a new professional opportunity for young chartered accountants or making India big with regards to professional services, we have to think about how do we collaborate and get people together to showcase a strength of 8, 10, 12 promoters to take this drive forward. That means the investment of self is also going to be very important. When this talent is going to come together, when a profile of a GCC is going to come together, the biggest advantage which is going to come is the investor, whether in form of equity or when you talk about from source of funding, or even for those clients which are going to outsource you certain things, is becoming very important. So coming together is one more investment which we need to really think about. Then comes when the profiling of an organization goes well, what will happen is it showcase that the right talent pool is together, and this talent pool can be actually given that kind of funding, whether in form of equity or in form of a debt. You all agree, right? आज भी आपके पास फ़ोन आते होंगे, सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको अनसेक्योर्ड लोन इतना फ्री में अवेलेबल है, मतलब फ्री नहीं, इंटरेस्ट रेट के साथ. So the point is that is been accepted fact that at this stage when we are looking at, the funding is available, but I think the portfolio of people when we are going to create is going to be very important. Please understand, one is sourcing the capital or a debt is one part. Second is the international funding which is coming in to set up their GCCs is also there. But the challenge out of it is the quality of resources which is going to be available is going to get scarce, because these GCCs have a multiple advantage. Multiple is multiple of 85, right? Multiple of 100, multiple of 30, multiple of 40. That means my rupee is there 30 rupees, right? So what I'm trying to put forward is there is going to be a huge amount of competition which is going to come with the inflection of this kind of capital, where the talent is going to be sucked into the system by paying whatever price it is. The critical factor which we all have to understand is how effectively the GCCs come together to ensure that this disruption doesn't become a negative disruption, but it becomes a positive disruption in sense where people are employed not at unexpected prices. Because this ecosystem today is very supportive, but if it is going to get disturbed, again the cost parameters and the revenue parameters are going to change. The projections which we are doing today will not be relevant tomorrow and day after. The basis, the promises on which we are actually raising this capital today is not going to be relevant for tomorrow. Please understand, this gap will actually take a spike up, but again it is going to take us down. So the important part which we all have to understand is how this funding is going to be taken up in time to come, whether it is again equity or debt, whether it is Indian or foreign, doesn't matter. Please understand the importance of GCC is going across the globe, and particularly India, very high. Earlier it was only the foreign companies which were coming into India. I don't know how many of you are aware, in Hyderabad, Wells Fargo has come. From the day one I am associated. Just to tell you a fact, today, that day there were only 10 people who are being employed, and today Wells Fargo alone, which is the largest bank of US, has employed 30,000 chartered accountants. Not chartered accountants, sorry, the entire employee base. Similar are the cases which are coming in a big way. Now this is primarily we are looking from foreign services. Take it from me, the Indian corporates are also focusing on that side. Now not only that,
Public sector undertakings are also looking at this as one of the options because of non-availability of talent. And finally, take it from me, the MSME, which is driving this nation also, is going to look at, because today getting a CFO for an organization, MSME definition is around 250 crores turnover. And even 500 crore turnover or 1000 crore turnover, companies do not have CFOs operating effectively. So at this stage, when the standardization processes are going to take place, how qualitatively we all have to get engaged, collaborate together, and think about, rather than thinking independent as an individual, I think it is a collaborative approach which is going to actually not only give a credibility in the market, but most importantly, feasibility of investment in your corporates which you are going to create over a period of time. There is a different world shortly which is going to be seen. One side, technology disruption is actually making lot of processes automate, where people eliminations are very high. Second side, a talent pool is always going to be always on demand at the grassroots level. So we need to wait and watch how this transformation is going to come in. I am telling you one fact with my little experience, the investments made today within 3 years will not be relevant in the GCC sector. So that means how dynamic and organizations have to be, think from that perspective. It is time to change, and it is not the time where 10 years the generation is going to change. It is every alternate year you are going to see a lot of change which is happening in the mindsets of people, in the mindsets of organization. That means that amount of funding you need to sit with so that this transformation is effectively addressed at all times. And let us hope that discussions today with regards to the kind of speakers we have, we get all these insights to make us think little wider and wilder in the entire process of setting up a GCC. I welcome you all, and thank you very much for giving me an opportunity. Thank you very much. Thank you very much. Friends, to all of you, let me give you a perspective. You heard the person. So, आप लोग ने वो scheme सुनी होगी ना, buy one get two free types. So, आज buy one में मतलब, so we are hosting this session. But today you have two free people, not people who are free, but the people who are making a huge impact in the overall ecosystem of chartered accountancy. Dayaniwas Sharma who just spoke, he's the chairman of one of the most promising committee today, one of the committee which is into super action, digital accounting and assurance board. After having rolled out forensic accounting investigation standards with 18 countries already in MOU, and now these standards will be adopted for their reporting purposes. There will be a huge impact on our chartered accountancy because only we know FAIs. I don't want to ask how many of you know FAIs today, but people, please understand, today is the moment that you are looking at a person who has actually rolled out the FAIs under DAB. I am the vice chairman of the DAB, and the kind of work that is being doing. And now, post the success of globally adoption of FAIs, we are now coming with Information System Audit Standards, the first again in the world. Let's have a huge round of applause for Dayaniwas Sharma. Every disruption that you see today in forensics, in terms of digital assurance, there is a new subject altogether which is being evolved and which is being rolled out by the ICAI under the Digital Accounting and Assurance Board, which we call it as a digital transformation, the DX function of chartered accountants, and that is being led by DAB. And very soon you will, of course, see, just you have seen the GCC imprints here in Gujarat. Very soon you will have an imprint of digital transformation very soon. Two very important models are RRU and NFSU who are helping us drive that. So people, please stay tuned to what is happening in DAB. तो ये तो हो गया एक free. Second is we have a very, very dynamic Central Council member, Anuj Goyal, who will be speaking at the end, of course. Great things come in the end only, actually. He is handling the CMIB, and he'll be apprising you about the various paradigm shift that the chartered accountancy as a course is seeing when it comes to industry as a perspective. So, and I'm sure to all of you who are looking at opportunities in GCC, you'll have something to hear about. You, of course, you heard Dayaniwas on various elements of how trainings
and how digital evolution is going to help our fraternity come better. You'll have another aspect or perspective from Anuj. Please have a huge round of applause for Anuj Goyal, who's handling the entire CMIB function and is doing something revolutionary work there. So, Abhinav, you know. Yes, very rightly said, Arpit sir. I think Dayaniwas Sharma sir has set the correct tone for the session, where he highlighted what is the importance of collaborative professional work from all of us, how IFSC and GIFT can be most made out of. And sir, I would request by the time support staff to request the delegates who are standing outside to come inside, because this session is one of the most crucial, because it will be talking all around the funding, which is the backbone, which is the oxygen for any economy. So requesting all the delegates to come inside. And it's my now honor to introduce the learned faculty, CA Naresh Dhanraj Kella ji, who is by qualification BCom, LLB and FCE of course. He is presently serving as Independent Director at PFC, Power Finance Corporation Limited, Maharatna PSU of Government of India. He is member of Gujarat State Fee Revision Committee, an appellate authority formed by the Government of Gujarat to regulate school fees charged by self-financed schools. He is also convener of Gujarat State BJP CSL. He is president of Zalawad Federation of Trade and Industries. His past responsibilities include being independent director at the State Trading Corporation of India Limited and director at Rajkot Nagarik Sahakari Bank Limited, a multi-state scheduled cooperative bank. So with big round of applause, sir, we welcome you to this discussion, this forum. Thank you, sir. And right. now I request... we'll set it up now. We'll wait for Hiranmay sir also. When he'll join in, we'll bring him on dais. Yes, sir. By the time you can, sir. Correct. All right. Yes. Okay, so thank you everyone. First of all, let me first thank both the wonderful personalities that we have today. Naresh bhai Kella, chartered accountant in business, known for his, Gujarat is known for having sweet in everything, almost everything that they consume, right? The maximum 90% of sugar comes from Naresh bhai's office. So he's a sugar entrepreneur, very, very fond and a very, very popular name from this part of the country. And also becomes an independent director in PFC. PFC मतलब पैसा. आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं. So thank you Naresh bhai for joining us here. Next to me I have Swetang bhai. राजकोट जो लोग राजकोट से हैं वो इनको जानते होंगे बहुत अच्छे से, बिकॉज आप फैकल्टी रहे हैं. he's been speaking, he's been training, he's been coaching so many people, and so much has he trained them that 49 of them out of I think 3,000 people that he has made CAs, 49 of them have joined him. और ये लोग जब आप सोचे नहीं होंगे, जब आपने सुना नहीं होगा गिफ्ट सिटी के बारे में, तब से गिफ्ट सिटी में है. So let's welcome Swetang bhai with a round of applause. So what I'll do is today clear है. I would first request that hygiene के लिए थोड़ा सा please no one moves in the front of the camera over here, क्योंकि they want this for production. दूसरा we'll be talking absolutely jargon free, ठीक है? No nothing. GCC भी हम बात नहीं करेंगे. हम बात करेंगे पैसे की, कि इधर आके कैसे पैसा बनेगा. सिंपल सी बात है, क्योंकि दो बहुत सही है, मतलब एक कंसल्टेंट है और एक है, और फिर हिरन भाई आएंगे, वो एक आई हब स्टार्टअप का अलग ही कम्युनिटी है, तो मॉडल पूछेंगे उनसे कि यार कैसे सक्सेसफुल करें. आज गवर्नमेंट पीछे लगी हुई है, इसको सक्सेसफुल बनाना है हमको, ठीक है? तो मान के चलेंगे कि कैसा हो सकता है, पर हमारे लिए क्या है, फॉर यू एंड मी व्हाट ऑल इज़ देयर हियर, वो करते हैं. तो जय श्री कृष्णा, गणपति बापा मोरिया और जय जिनेंद्र बोलते हुए शुरू करते हैं इस सेशन को, क्योंकि पोजीशन अभी शुरू हो रहा है, जिनका हो गया है और अब होने वाला है, उनकी तपस्या को बहुत बहुत नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले श्वेतांग भाई, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. सर 21 साल से आप यहाँ पे हैं, यानी 2021 में आप यहाँ पर आ गए थे, 21 से आप इधर हो. सर कर क्या रहे हो यहाँ पर? मतलब ये तो पूरा रेगिस्तान था, मतलब जितना मुझे, और अभी भी है. yes. हर जगह कंस्ट्रक्शन है. एक तरफ से ऑफकोर्स बहुत अच्छी ग्रीनरी है. AQI पता नहीं क्या होगा, हम लोग मुंबई और दिल्ली वाले लोग हैं, तो AQI बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है. तो आप लोग ये कंस्ट्रक्शन इतना जो मेहम चल रहा है उसको कैसे बेयर कर रहे हैं? एंड so what is your idea and what made you come here in the start? Thank you अर्पित जी. पहले तो मैं नीरव भाई को थैंक्स कहना चाहूँगा, अहमदाबाद ब्रांच से, गांधीनगर ब्रांच से हमारे चेयरमैन सर को थैंक यू कहना चाहूँगा, और परसोत्तम खंडेलवाल सर जी को, जिन्होंने रिफ़र किया और मुझे ये स्टेज मिला, और सेंट्रल काउंसिल मेंबर को भी, और ख़ास साजिब सर जो हो कि ये हैपन किया. अब जब भी कोई ये पूछता है कि भाई GCC एक्चुअली क्या है और वो फ़ायदा क्या है, जब तक सामने वाले को धंधा अगर चाहिए
और उसको फ़ायदा नहीं समझा सकते हो, धंधा नहीं होता है। और परसों ही साजिब सर जी से हम शाम को ऐसे ही कन्वर्सेशन चल रहा था, तो एक डिस्कशन हुआ कि एक मेंबर मुझे पूछ रहा था कि यार 2000 रुपये मेंबर से ये ये सेमिनार की फ़ीस है, तो भरूँ या नहीं भरूँ, तो और कुछ काम का है कि नहीं। तो साजिब सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया, क्योंकि वो भी एंटरप्रेन्योर है। ये आंसर है ना प्रैक्टिशनर नहीं दे सकता है, ये आंसर एंटरप्रेन्योर ही दे सकता है। क्या दिया मैं बताता हूँ भाई, तुम 400 लोग मिल के 8 लाख दे रहे हो, इंस्टीट्यूट 50 लाख खर्च कर रहा है, तो 8000 का फ़ायदा उठाना हो तो तुम भरो, नहीं उठाना है तो नहीं भरो। तो वही मोड़ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जीसीसी से अगर आपको कमाना है तो व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्शनेबल स्टेप। आप 1, 2, 5 सीए से नहीं कर पाओगे, आपको 25 सीए को बाहर जाके इकट्ठा होना पड़ेगा। पहली बात, वो 25 सीए के पास 5 सेट ऑफ स्किल्स चाहिए। अगर वो 5 सेट ऑफ स्किल आपके पास नहीं है तो धंधा नहीं आएगा। अच्छा। यस। अब मैं वो 5 सेट ऑफ स्किल बोलने से पहले आपका फ़ायदा क्या हो सकता है वो बोलता हूँ, तभी वो जो 5 बोलूँगा ना स्किल, वो ज़िंदगी भर याद रखोगे आप, वरना नहीं रखोगे। तो देखिए, अगर आप 25 लोग इकट्ठा हो गए, जो मैं 5 सेट ऑफ स्किल बोलने वाला हूँ, वो अगर आप 25 लोगों में से ग्रुप्स में है अलग अलग, तो आप अगले 6 साल में पर पर्सन 30 करोड़ रुपया वैल्यू क्रिएशन कर पाएंगे। मैं ये चीज़ आपको प्रूव करके बताऊंगा। तालियां होनी चाहिए जोरदार। आप 25 लोग, इतना बड़ा नंबर सुन के थोड़ी तो जागे होंगे आप लोग, है ना? और मैं जो भी बोलूँगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सामने बोल रहा हूँ, मैं खुद सीए हूँ, तो मैं प्रूव कर सकूँगा, वही बात बोलूँगा। पहली बात, अगर आप 6 साल का 30 करोड़ इंडिविजुअली कमाने वाले हो तो पर ईयर 5 करोड़ कमा रहे हो। अब आपको दिमाग में घुसा लेना है कि मुझे पर ईयर 5 करोड़ कमाना है, तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो 25 लोगों में क्रिएटिव, अगर खुद में नहीं है तो ऐसे बंदे को पकड़ो जिसके पास वो स्किल है। दूसरा, आप जिस क्लाइंट को सर्व करने वाले हो वो क्लाइंट की भी प्री कंडीशन है, उसका 5000 करोड़ टर्नओवर चाहिए। अब आप जानते हैं दुनिया भर में, इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसका 5000 करोड़ टर्नओवर होगा। अब आप 25 लोगों को इकट्ठा होकर पूरा 1 साल मेहनत करके ऐसा एक क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना है फॉर जीसीसी सर्विस। सेकंड थिंग, उसकी दूसरी कंडीशन है कि उसका 20% 5000 करोड़ का 1000 करोड़ जीसीसी थ्रू मैनेज होने वाला हो, यानी जो हम रिप्लेस करेंगे सर्विसेज, जीसीसी को आउटसोर्स करेंगे, उसका वो 1000 करोड़ का खर्च होना चाहिए। अगर इतनी कंडीशनें सेटिस्फाइड होती है तो उसका 6 साल का वैल्यू क्रिएशन क्लाइंट का 1250 करोड़ होगा। मैं ये, क्योंकि अब मैं फिगर्स भी एक्सप्लेन कर पाऊँगा, तो उसको 1250 करोड़ का वैल्यू ग्रोथ मिलेगा 6 साल में। हमें एज अ जीसीसी मैनेज करने वाले टीम को 30 करोड़ रुपया मिलेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये कैसे होगा, वो तो टाइम से हम आगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन 5 सेट ऑफ स्किल बोलता हूँ। सबसे पहली स्किल पिचिंग स्किल, क्योंकि यही ब्रह्मा है जो धंधा ला सकता है। इंडिया में धंधा लाना ही की है, काम करने वालों की इंडिया में कोई कमी नहीं है। तो पहला आपको पिचिंग टीम चाहिए, पिचिंग मेंबर चाहिए, जिसका डेमो में अगले इस सेशन में आपको दे पाऊंगा कि भाई कैसे हम ये चीज़ कर सकते हैं। दूसरा, हमें चाहिए स्ट्रक्चरिंग टीम, क्योंकि जीसीसी 3 स्ट्रक्चर से हो सकता है। एक कि आप प्राइवेट लिमिटेड करो, एलएलपी करो, और तीसरा आप हाइब्रिड एक है, और लेकिन मैं इसी 2 में इंटरेस्टेड हूँ तो याद नहीं है, लेकिन तीसरा भी एक स्ट्रक्चर है। तो एक स्ट्रक्चरिंग टीम चाहिए। स्ट्रक्चरिंग टीम का भी फंडिंग जो होता है उसका भी अलग अलग होता है। स्ट्रक्चरिंग मतलब अपनी खुद की? नहीं, जीसीसी का। हाँ, अपना जीसीसी। मैं अभी सीए लोगों को साइड में रख रहा हूँ। उसकी टीम में जो हम जीसीसी बनाने वाले हैं उसकी स्ट्रक्चरिंग स्किल चाहिए कि भाई तुम्हें प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, तुम्हें एलएलपी होना चाहिए, या तुम्हें पार्टनरशिप या ब्रांच मॉडल में जाना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चरिंग हो गया। तीसरा, आपको टीम चाहिए कॉम्प्लायंस टीम। कॉम्प्लायंस टीम का काम है सब चीज़ों को आपको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, और ऑनबोर्ड करने के लिए आपको 7 लॉज अप्लाई होते हैं अदर देन कंपनी लॉ एंड ऑल दिस थिंग्स। 7 लॉज? 7 लॉ। तो वो कॉम्प्लायंस के एक्सपर्ट्स चाहिए, वरना ये चीज़ नहीं हो पाएगी। अब आप एक बात समझिए, वो करोड़ों वाला आदमी है जो आपको धंधा दे रहा है, आपको ये उसको उल्लू नहीं बना सकते। उसको वो रियल में आप कोर कॉम्पिटेंस रखते हो तभी उसको पता चलेगा, तभी आपको धंधा मिलने वाला है। तो हर कोई फर्म ये सब तो पैदा कर नहीं सकती है, तो 25 लोगों को जो जिसके एक्सपर्ट है उसको लाना पड़ेगा। 4th थिंग आपको चाहिए लीगल टीम,
क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट वो वेंचर से करना है, विदिन आप 25 लोगों के बीच करना है, वो जीसीसी में जो काम करेंगे उनके साथ करना है। जरा भी आपने गलती कर दी तो आपको सब्सिडीज नहीं मिलेगी जो गुजरात सरकार से मिलने वाली है, IFS से मिले। अगर राइटिंग में गलती हो गई तो बात खत्म, आपको पैसा। तो वो भी एक्सपर्ट टीम चाहिए। और चौथी आपको जो टीम चाहिए वो टैक्सेशन टीम चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब चीज़ें टैक्सेशन से होती है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे, ये जो 30 करोड़ बोले वो उसका 1200 करोड़, मैं सिंपल बता रहा हूँ। ये पैसा कमाने के लिए कोई ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मैं नहीं गिन रहा हूँ, वो तो सरप्लस है। सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स दे रही है वो सिर्फ इंसेंटिव्स से जो उसका पैसा बचेगा जीसीसी के थ्रू एंटिटी का 35 से 40% बचेगा। 35 से 40% उसका बचता है ड्यू टू वो पॉलिसी चलिए हम शेयर कर देंगे, आप सीए लोग पढ़ लेंगे, उसमें घुसना नहीं है, लेकिन 35-40% बचेगा। तो 1000 करोड़ का आपका जो भी पैसा बचता है उसका आप 5 साल का कैलकुलेशन करो, 1 साल में धंधा ऑनबोर्ड करेगा, सब गिन के आधा पैसा हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वेंचर को जाएगा, आधा पैसा हम 25 लोगों को आएगा। तो वही 25 लोगों को जो पैसा आने वाला है वो होगा 5 करोड़। लेकिन आपने जो एंटिटी सीए लोगों ने बनाई, अगर वो कंपनी है और वो 50 करोड़ रुपया बनाने की 5 साल के एंड में कैपेसिटी रखता है, तो 20x से 10x से भी उसका वैल्यूएशन 500 CR होता है। तो वो वैल्यू क्रिएशन भी पॉसिबल है, और वो वैल्यू क्रिएशन ही सही मलाई है। रेवेन्यू जनरेशन इज नॉट द थिंग्स। तो कहने का मेरा पूरा मतलब है कि पूरा एक इकोलॉजिकल कैलकुलेशन होता है जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ये आपको ये नहीं मानना है कि ये नान की बात कर रहा है, ये प्रोसेस में हम कमा रहे हैं। हमने अपनी वैल्यूएशन को 100 करोड़ क्रॉस करवा दिया है और उसे 22 करोड़ रेस भी कर लिया है। तो हम 50 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वी आर द 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो व्हाट आई एम एक्चुअली टेलिंग कि भाई देखिए, एक ज़िंदगी में सब स्किल डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो हमें ये सीख लेना है, मैं सब सीखूंगा नहीं। अगर मुझे लीगल टीम चाहिए, मैं उसका बेस्ट बंदे को पकड़ूंगा, उसको कहूँगा भाई आजा, हम नया एप्पल पैदा कर रहा है, 1/5 तुम्हारा। मैं कॉम्प्लायंस को पकड़ूंगा। तो एक्चुअली मैं आपको बोलूँ, टैक्सेशन में मैं ये 5 स्किल में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ टीचिंग में एक्सपर्ट हूँ। तो मैंने बाकी सबको लाया हूँ, वो सब एक्सपर्ट है। अगर आप डीप में जाके पूछेंगे इसका टैक्स कितना, वो तो मैं कहूँगा ठहरिए, मैं अभी इसको बुला लेता हूँ, आप उससे बात करिए। करेक्ट। मेन फ़ायदा समझ में आना चाहिए। मैंने पहले आपको फ़ायदा समझाया कि भाई 5 करोड़ साल का कमाना है तो 25 लोगों को इकट्ठा होना है, जो इम्पॉसिबल नहीं है। ये सेट ऑफ स्किल के लोग बाहर ही हमें मिल जाएंगे। और ये तो मैं अपने पेट पर लात मार रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा दरिया है कि हमारे जैसे 500 लोग खड़े होंगे ना, तो भी हम पूरे समुद्र में 500 मछली ही होंगे। वाह। तो कोई हमारा नुकसान होने वाला नहीं है। तो आई एम हियर टू रिवील माई सीक्रेट्स, ऑल सीक्रेट्स। अगर आप लोग इंस्पायर्ड होते हो तो 25 लोगों को इकट्ठा करने में मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ। थैंक्स। वाह, गजब। कहते हैं विद्या और दोस्ती बांटने से ही बढ़ती है। तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट उदाहरण है। ये सीक्रेट्स देने नहीं आया है, ये सीक्रेट्स इतना बढ़ा देंगे कि आप में से आज 50 लोग और अगर जुड़ गए तो इनकी वैल्यूएशन जो आज 500 करोड़ है वो 1000 करोड़ होते हुए, मतलब मैं तो वही लालच से आया। वॉल्यूम देखो, सिंपल सी बात है। अब ये अक्सर आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, मतलब अभी हिंदी में भी बात हो गई, गुजराती में भी कर लेंगे, इंग्लिश में भी कर लेंगे, बट ऐसा क्या चीज़ है जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जी समझ नहीं पा रहे हैं। सो ICAI MDP फोर्स कर रहा है, ICAI एग्रीगेशन बोल रहा है, उस पर लेक्चर्स ले रहे हैं, इतना प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बट फिर भी हम लोग सब छोड़ छाड़ के आ ही नहीं पा रहे हैं। तो मुझे एक लगता है सर, इसमें एक जो आपने कहा सबसे पहला जो है ब्रह्मा चाहिए। जैसे एक आप फैकल्टी हो गए, तो वैसे आप लोग में से जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको इन्वाइट करूँगा कि ब्रह्मा बनने के लिए आपको फैकल्टी बनना पड़ेगा, स्पीकर बने, बातचीत करें, अपनी चीज़ें बताएं, तो आप हो सकता है 50 जन की ऐसी टीम खड़ी कर सकें। बट बिलीव मी, गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इट इज़ ओनली साइज एंड स्ट्रेंथ in this country that will attract equivalent size and strength. नहीं तो अदरवाइज़ तो सब अपने अपने सुबह से 9 बजे से 4 बजे वाली दुकान तो चला ही रहे हैं। सो कमिंग टू नरेश भाई, नरेश भाई, पैसा आपके पास है, PFC है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, आप बिजनेस में भी हो, सब कुछ हो, आप गुजराती तो हैं मतलब, बट इंडिपेंडेंटली पूछना चाहूँगा एज अ, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे भी है सर, क्या लगता है ये GCC वाकई ऐसा स्टॉक है या ऐसा वो स्क्रिप्ट है जिसमें अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने के लिए? और समझो जैसे
सर जैसा एक मॉडल अगर आपके पास आए तो आप लोग क्या उसको फंड करना चाहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है इसलिए. First of all, I would like to thank Purushottam Khandelwal ji, my younger brother Arpit bhai, Anuj ji, and Ahmedabad and Gandhinagar branch presidents for giving me this opportunity to be with you here. And Arpit bhai, after 20 years of completing my CA, still the institute doesn't stops giving me surprises. अभी सुबह 10:30 बजे फ़ोन आया कि आपका सेशन प्रीपोन कर दिया है, जल्दी पहुंच जाइए. तो वेल, कमिंग टू योर क्वेश्चन, PFC, before I can share something about the PFC, I would like to share about the GCC. Currently, we have more than around 1600 GCCs in India, employing almost 1.7 million resources. And we look forward for more than 60 billion USD investment in GCC over the next 5 years. Wow. And in terms of power, we are not just a lending institution for power sector now. We are creating the sustainability models, and we are creating the entire ecosystem for GCCs. We do lend for power, but our priority now has changed. Apart from power, we have also added to our object clause the large scale infra, which includes GCC. So PFC is very much clear in terms of lending operations. We have come up with many innovative financial products, structured finance, and we have lent into very big infra projects, green projects at PFC. And our target for upcoming years is to fund those projects which are encouraging the sustainability. Okay. Yeah. So नरेश भाई, GCC में कितना पैसा डालने के लिए रेडी हैं आप लोग? मतलब as such, there is no limit. No limit. There is no limit. We are open for no limit. Funding large scale projects. Wonderful. Yeah. Wow, great. Thank you very much. Let's please put your hands together and welcome the CEO of iHub, Hiranmay Mahanta ji. जैसे नरेश भाई ऑलरेडी स्पिल्ड द बीन्स, मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक होना चाह रहा था. तीनों आ जाएं, फिर मैं थैंक्स देना चाह रहा था कि जो 4 बजे का सेशन था वो अभी 11:30 बजे हो रहा है. तो आप सोचो, एक बार जोरदार तालियां तीनों स्पीकर्स के लिए बनती है कि कितनी तैयारी इनको करने का मौका मिला है ये सेशन के लिए. सो एक तरह से समझ लो आप इम्प्रॉम्प्टू सेशन हो रहा है. मेरे पास भले क्वेश्चंस हैं पर हम लोग को डिस्कस करने का टाइम नहीं मिला है. बट आई एम श्योर एक फैकल्टी हैं, एक सीजन बिजनेसमैन है, और एक इनका काम ही यही है कि कैसे यहाँ वहाँ से टुकड़ों को इकट्ठा करके उनको एक बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना, एक बीज बनाओ, उसको ग्रो करो. तो हिरण भाई वेलकम. महंता सर, मैं आपके पास आता हूँ. उससे पहले श्वेतांग सर से एक क्वेश्चन लूँगा. सर हमने बात की थी कि यू सेड दैट, आपने टॉप 5 थिंग्स बता दिया है कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या है. सर एक क्विक केस स्टडी अगर आप बताना चाहें कि जो, क्योंकि आप 2021 से यहाँ पे हैं, एंड पीपल मस्ट बी, एक्चुअली पीपल आर थिंकिंग, स्ट्रक्चर्स नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ करें. एंड बहुत बार होता है कि मेरे को मेरी COP सरेंडर करनी पड़ रही है. मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहा है कि यार मैं मेरा चलता हुआ धंधा छोड़ के इधर आके बैठूँ रेगिस्तान में, और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो ना हो. आपके पास तो 50 लोग थे और आपका कन्विक्शन था कि आप निकल पाओगे, बच पाओगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं. बट ये सर, ये चीज़ों को थोड़ा सा एड्रेस करें कि हाउ कैन वन वर्क इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आई कुड स्टॉप लॉस बोलते हैं ना, स्टॉप लॉस लगा सकूं मैं. ब्रेक इवन आ जाए हमारा. एक्चुअली मेरे लिए ये चीज़ ईजी, इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. पहला कैसे हमने किया, क्योंकि हम खुद एक केस स्टडी है. तो क्योंकि मैं टीचर रहा था और मेरा, आपने 3000 बोला तो मैं ना बोलना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन एक्चुअल 350 है. वाह. वो मैं सर मैं वैल्यूएशन के हिसाब से 10x कर दिया था, इसीलिए मैं तो चाहता था कि आप वो कंटिन्यू करो, लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं तो बोलना जरूरी था. यस. तो वो स्टूडेंट्स थे तो वो मेरे विज़न को कनेक्ट कर सकते थे.
लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि क्यों जीसीसीज के एंटरप्रेन्योर सीए नहीं बन रहा है, आज के टॉपिक का ये पार्ट है ना। सबसे पहला रीज़न है कि ये वही बंदा कर सकता है जो 45 साल के आसपास हो, क्योंकि 45 साल एक मैजिकल एज होती है जब आपके पास उतने पैसे होते हैं कि आप अगले 3-4 साल सर्वाइव कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दुनिया आप पर बिलीव कर सकती है कि आपने 20 साल कैरियर में निकाला है तो आपकी एक लीगेसी बन गई होती है, तो लोग फॉलो करते हैं। और तीसरा, 45 साल ऐसी उम्र है कि 20 साल और काम कर सकते हो। ये चीज़ नहीं 55 में हो सकती है, ये नई चीज़ 35 में हो सकती है। तो भगवान की दया से मैं जब 45 का हुआ तब गिफ्ट सिटी का 21 हुआ था, 2021। तो कोरोना के वक्त दुनिया ने जो एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ सीखी कि कोई भी काम के लिए फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। ये दुनिया पहले भी मानती थी, लेकिन वो बिजनेस में आया 21 में, तो उसी वक्त हमने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझा। अब जो दूसरा पार्ट है कि क्यों सीए लोग ये बिजनेस में हमारी तरह आते नहीं हैं, वो सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स यहाँ बैठे हैं। मैं एक जो कहना चाहता हूँ, देखिए हमारा रूल है कि हम मार्केटिंग नहीं कर सकते, हम सॉलिसिट नहीं कर सकते। वो रूल का बेसिक फंडामेंटल ये था कि सीए से ही कॉम्पीट करके अपना नुकसान क्यों करता है और डिग्निटी क्यों बिगाड़ता है। लेकिन जीसीसी की जहाँ बात आती है वहाँ आपको सीए से नहीं कॉम्पीट करना है, वर्ल्ड जायंट प्लेयर्स से कॉम्पीट करना है, बिग फोर्स और ऑल दिस टाइप ऑफ पीपल, बराबर है। वो तो हथियार पूरा AK-47 लेके बैठे और आप COP के साथ हाथ बंधे पड़े हैं जरा। और हमारी एक कम्युनिटी, क्योंकि हम गलत ढूंढने के लिए ट्रेन हुए 5 साल, मैं भी तो खुद सीए हूँ, या हमें तो वो भाई क्या क्या गलत है, क्या क्या समस्या है, वही ढूंढना है। तो अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो दोस्त आपको मिल ही जाएंगे। मुझे सीए की डिग्री मिलने से पहले मुझे नोटिस मिली थी कि भाई आपने ये काम किया था तो आपको अभी डिग्री नहीं मिल सकती है। तो यानी मैं जो एक मेरा पहला लाइफ का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, तो हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा और सीए इंस्टीट्यूट को ये लेवल पर अलाउ कुछ अब कैसे करना है वो आपका इश्यू है। हमने तो COP सरेंडर करके अपना धंधा कर लिया। तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, लेकिन अगर आपको वर्ल्ड को कॉम्पीट करना है तो उनके हिसाब से करना पड़ेगा। मैं लॉन टेनिस, टेबल टेनिस रैकेट लेकर नहीं खेल सकता, वो टूट जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमने पहले वो फ्रीडम पाई। मैंने पहले अपना 2021 में COP सरेंडर किया। अगर हमने कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लिया कि विदाउट सरेंडर, तो आपको 45 साल पर सीजन 2 स्टार्ट करने वाले लोग मिलेंगे। क्योंकि दिक्कत क्या आती है, आपको पूरा अपना एम्पायर को वैनिश करना पड़ता है, फिर नया क्रिएट करना पड़ता है। और बीवी माने या नहीं माने, मैं तो नसीबदार था हर किसी को तो मानेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमें जो हर्डल्स है फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट साइड उसको सॉल्व करना है। बाकी 25 लोग नहीं, यहाँ हम 25-25 के 8 ग्रुप बना सकते हैं। मुझे 200 तो कम से कम लग रहा है। तो इमीडिएटली अगले 1 महीने के एंड तक हम फॉर्म करके हम 1 साल के एंड पर एक क्लाइंट तो ला ही सकते हैं। एक क्लाइंट से अगर 30 करोड़ हम 6 साल में कमा सकते हैं तो नॉट ओनली 1 क्लाइंट इज अवेलेबल, थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स आर अवेलेबल। तो मैं क्यों ऐसा बोला हूँ भाई 50 नहीं 500 चाहिए, क्योंकि कोई खोट ही नहीं है। सिर्फ हमें अपना माइंडसेट, रेगुलेटर्स को अपना फॉर्मेट बदलना है, इंस्टीट्यूट को अपना करना है। हमें एक माइंडसेट करना है कि टुगेदर वी ग्रो मोर, क्योंकि वही ग्रो तो था ही था। तो एक्चुअली हम अकेले अकेले जो पूरी ज़िंदगी में नहीं क्रिएट कर सकते थे वो हम 5 साल में एक क्लाइंट से कर सकते हैं। तो दीस आर द स्कोप और उसके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो रफली मैंने बोला है, फिर भी कुछ रह गया तो आप कहिए। नहीं, परफेक्ट। आई थिंक राइट केस स्टडी आपने हमको बताई है कि हाउ रियली कैन वी गो हेड। एक वो जो मिथ होता है, हमेशा एक डर रहता है कि क्लाइंट कैसे मिलेंगे, आपने उसको बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। HM सर, आपसे बात करते हैं। इन्होंने लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और ये सब की बात की है। आप तो स्टार्टअप वाले हैं, तो पिकल बॉल की बात करते हैं। अब सर पिकल बॉल आया, उसको सब लोग कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा रैकेट चेंज नहीं हो, उन्होंने तो रैकेट भी कंबाइन कर दिया, मतलब टेबल टेनिस, लॉन टेनिस सब कंबाइन कर दिया। तो ऐसे हाइब्रिड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सर, व्हेन यू आर डेवलपिंग एंड व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ सच अ बिग इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स, GCC को आप कैसे देखते हैं फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट? सर अभी भाई थैंक यू। पहले तो आई कंग्रेचुलेट ICAI। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी जिन्होंने ये GCC की पॉलिसी नैरेटिव्स को कंट्री लेवल पे लीड रोल ले रहे हैं। मैं आपकी GCC कॉन्क्लेव में भी दिल्ली में देखा था। थैंक्स टू नंदा जी एंड ऑल ऑफ यू। आई थिंक ICAI इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन
taking this agenda forward. So I must thank you for that. पहली चीज़ ये है कि मैं आपको अगर सहजता से समझाने की कोशिश करूं, स्टार्टअप की कहानी दो भाग में होती है. एक होता है 0 to 1 और दूसरा होता है 1 to n. n could be anything. n could be 100, 1000, millions, कुछ भी. दोनों जर्नी अलग अलग तरीके से होती है. जब आप 0 to 1 में होते हैं, आप मेटाफोरिकली कह सकते हो कि आप मदर की ऊम में हैं, आपकी इंक्यूबेशन चल रहा है. जो हम इंक्यूबेशन के शब्द इस्तेमाल करते हैं ना स्टार्टअप इकोसिस्टम में, और टेक्निकली दैट इंक्यूबेशन की बात करते हैं. दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. बट 1 to n इज अ वेरी डिफरेंट जर्नी. ब्यूटी क्या है इकोसिस्टम में कि इंडिया में अभी लगभग 2 लाख स्टार्टअप्स हैं. उसमें से 80% स्टार्टअप 0 to 1 का जर्नी कवर कर दिया है. बट आप सबने देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी ने ये प्रयास चालू किया तो उन्होंने 2 शब्द कहा था. एक कहा था स्टार्टअप इंडिया और दूसरा कहा था स्टैंड अप इंडिया. स्टार्टअप इंडिया था 0 to 1, स्टैंड अप इंडिया था 1 to n. कैपेबिलिटी का फ़ायदा यहाँ पे ये है कि हमने एक बड़ा चैलेंज देखा अर्पित भाई ICAI की हर स्टार्टअप प्रोग्राम में हम तो पार्टिसिपेट करते ही है गवर्नमेंट से. बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, लगभग 60-70% स्टार्टअप्स $5 मिलियन तक तो पहुँच जाते हैं, जो 0 to 1 का कहानी है. लेकिन 5 मिलियन से 50 मिलियन की जो विजन, जर्नी और सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वहाँ उनको बहुत बड़ी चैलेंज होती है. अब ये चैलेंज सिर्फ गुजरात, अहमदाबाद, गिफ्ट सिटी का यहाँ का नहीं है, ये पैन इंडिया प्रॉब्लम है. आई थिंक GCC प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन हेल्पिंग दिस स्टार्टअप फ्रॉम 5 मिलियन to 50 to 500. सो अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम 0 to 1 का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, GCC 1 to n का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. कैसे? बाई नेचर स्टार्टअप्स लोग थोड़े अजाइल होते हैं. वो फास्ट अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्विक टेस्टिंग की बात करते हैं, और जितना ज़्यादा नॉन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में अगर कोई एक एग्जिस्टिंग डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम स्टार्टअप करता है. GCC क्या करता है? GCC इमीडिएटली टेक्नोलॉजी यूसेज नहीं करता है. जब टेक्नोलॉजी मैच्योर होता है, टेक्नोलॉजी स्केलेबल बनता है, जब उसकी स्टैंडर्ड्स बनते हैं, तो उसको GCC अपना पेरेंट इंडस्ट्री के माध्यम से ग्लोबली स्केल करने की कोशिश करता है. हमने कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ICAI, अहमदाबाद, नीरव भाई, ऑल ऑफ आई मस्ट थैंक देम. अहमदाबाद की ICAI एक चैप्टर की मदद से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की. हमने लगभग फिनटेक में 30-35 स्टार्टअप्स को, जो 5 से 7 मिलियन डॉलर पे पहुँच गए थे और जिनका टेक्नोलॉजी अडॉप्शन लोकल एनवायरनमेंट में हो गया था, उनको हम यहाँ के GCCs के साथ पायलट करवाया. अब जब उन्होंने पायलट करवाया तो फाउंडर्स को भी पता चलता है कि एक्चुअली हमारे अंदर में तो ग्लोबल कैपेबिलिटीज़ हैं. We can also sell the same solution in Middle East. We can sell the same SaaS solutions in Europe. We can also sell this same thing in MENA region और US. तो सबसे बड़ी एडवांटेजेस जब GCC और स्टार्टअप्स की मिलन हुई, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हमारी जो 0 to 1 वाले फाउंडर्स का कि हम 1 to n भी जा सकते हैं. तो ये सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई. दूसरी फायदा क्या हुआ, जब ग्लोबल कंपनीज का GCCs यहाँ पे हैं तो सोशो कल्चरली ये लोग लोकल एनवायरनमेंट्स को, कस्टमर को बेहतर समझते हैं. जैसे सर ने कहा कि अगर यहाँ से कोई CA अगर बैक ऑफिस की जगह फ्रंट ऑफिस से सोचता है तो यू कैन हैव अ बेटर आउटलुक, क्योंकि आप यहाँ की इकोसिस्टम को जानते हैं. तो आई कैन टेल यू, हम लोग ने जिन स्टार्टअप्स को 2 से 3 मिलियन तक 0 to 1 में सपोर्ट किया था, विथ हेल्प ऑफ द GCC दे कुड गेट पायलट इन यूरोप, इन स्कैंडिनेवियन कॉन्टिनेंट, इन US. और जो कंपनी 50 करोड़ की वैल्यूएशन में यहाँ पे इंक्यूबेशन में था, 24 महीने के अंदर में आज जो 400-500 करोड़ की वैल्यूएशन में आ गया, ओनली बिकॉज दे हैव मार्की क्लाइंट्स इन डूइंग इट. अब ये जो वैल्यू एडिशन हुआ इन हेल्प ऑफ दीज GCCs एंड अदर एक्सटेंडेड इकोसिस्टम, मुझे वो फाउंडर्स कहते हैं कि सर अगर हम डोमेस्टिक मार्केट और डोमेस्टिक कैपिटल के पीछे पड़े होते तो शायद इतना फास्टर ग्रोथ नहीं होता. हमारे प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट जरूर थी, बट प्रॉब्लम ये है कि आज हमने 10 या 15 को तो कर पाया है, लेकिन अर्पित भाई और आपकी MSME स्टार्टअप कमेटी और आपकी पूरी जो फोरम है, इनकी मदद से ये 20-30 को 2 या 3 हज़ार कैसे करना. मैं उस दिन नंदा सर का सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भैया हमको तो 500 GCCs तो यहीं बनानी चाहिए फिनटेक की. तो हम लोग 10-15 तक यूज केस तो बना लिए हैं GCC और स्टार्टअप्स की मैरिज मंडप बना करके, बट जब यूज केस बनता है, और अभी ज़्यादातर लोग फिनटेक, SaaS, IT सर्विसेज में है, लेकिन ये चीज़ अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल ऑडिट्स में, ये चीज़ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में, ये चीज़ बायोटेक्नोलॉजी में, हर एक क्षेत्र में ही हो सकता है. तो एक सक्सेस में आप सेक्टर वाइज बढ़ाएं और दूसरा वाई एक्सिस में नंबर वाइज भी बढ़ें. अगर ये हम करते हैं, आई थिंक अर्पित जी, वट एवर ICAI हैव ए ड्रीम फॉर द GCC एंड स्टार्टअप इंटीग्रेशन, इट विल बी रियली फ्रुक्टिफाइड. थैंक यू. थैंक यू HM. सर मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जैसे कहा कि स्टार्टअप्स डोमेस्टिक से ग्लोबल भी गए, तो एक ब्लैंक क्वेश्चन अप फ्रंट कि गिफ्ट सिटी आपको लगता है इज़ अ गुड इकोसिस्टम फॉर GCC? एब्सोल्युटली. आई मीन मैं आपको अगर उदाहरण दूं, अलग अलग जियोग्राफीज़ का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है.
सो फॉर द एग्जाम्पल मैं जो स्टार्टअप से सीखा हूँ राइट, काम करते हुए हमारी टीम में, अगर आपको कोई भी सोल्यूशन मोबाइल फास्ट बनाना है, मतलब अगर आपने कोई ऐसा इनोवेशन किया है जो मोबाइल फास्ट यूज केस है, तो साउथ ईस्ट एशिया की इकोसिस्टम से बेहतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम डेस्कटॉप लैपटॉप जंप मार के सीधा मोबाइल पे आ गए हैं राइट। कोई भी सोल्यूशन अगर क्लीन टेक में है या नेट जीरो पे है या सस्टेनेबिलिटी में है, तो यूरोपियन इकोसिस्टम से बेहतर कोई है नहीं, बिकॉज वो हर चीज में देखते हैं कि इसका सस्टेनेबिलिटी फैक्टर क्या है। कोई भी चीज अगर डिसरप्शन को प्रायोरिटी देता है, मान लीजिए कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज के सिस्टम बनाना है, तो सिलिकॉन वैली से बेहतर कुछ है नहीं। तो अलग अलग ज्योग्राफी का जीसीसीज की अलग अलग स्ट्रेंथ्स होता है। सिमिलरली गिफ्ट सिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि अगर कोई स्टार्टअप है या कोई एमएसएमई कंसल्टिंग यूनिट है जिसको अगर अपना स्किल सेट और प्रोडक्ट मार्केट फिट को वैलिडेट करना है, तो ये बेहतरीन जगह है कि आप अपना यूज केस यहां बना करके एक लोकल यूज केस बना सकते हो। और अगर आपका लोकल यूज केस क्वालिटेटिव है, स्केलेबल है, आई बिलीव आपको 1 से 10 क्लाइंट तक पहुंचने के लिए टाइम नहीं लगेगा। और अर्पित भाई, अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ है, जो स्टार्टअप्स का 70% रेवेन्यू पहले डोमेस्टिक मार्केट में था, जब हमने अभी इन लोगों के साथ मैरिज मंडप पे उनको लेके आए, अभी वो कहता है साहब मेरे यहाँ से बैठे बैठे 80% रेवेन्यू मेरा यूरोप से आ रहा है, कंप्लायंस हैसल्स फ्री हो रहा है, तो मैं क्यों ना अभी मेरा धीरे धीरे बैलेंस शीट को 40% से 90% तक वहाँ ले जाऊँ, और फिर मेरे वैल्यूएशंस, मेरे रिस्पेक्ट, मेरे ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ता है। तो आई थिंक दिस इज ए गुड इकोसिस्टम, एंड आई मस्ट से दैट हमारी जो आईसीआई की कम्युनिटीज़ हैं, अगर थोड़ा इसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो आई थिंक वी कैन मूव 10x इन द स्पीड। वाह वाह, ये ग्रेट। सेम क्वेश्चन का 2 ही मिनट है, क्योंकि सर मैं इस पे एक क्वेश्चन नहीं, मैं इस पे एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ सर आपका, दोनों आपसे पूछना चाहूँगा। नरेश भाई, आपसे एक बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है, चैलेंजेस इन अ बिजनेस, वो आपको लेता हूँ। बट चूंकि आपने अभी एचएमई कहा, मुझे ही बताओ, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ बैठे हैं, सब डोमेस्टिक मार्केट में खेल ही रहे हैं, इनको इंटरनेशनल जाना है, व्हाट आर द टॉप 3? क्योंकि आपने तो स्टार्टअप को, मतलब अभी सर ने कहा कि देखो सामने वाले उल्लू नहीं है, उनको तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारा इतना बड़ा सेटअप है गिफ्ट सिटी में, ये बिल्डिंग पूरी जो पीछे कर्व बन रही है पूरी मेरी है, मतलब एक तरह से ऐसा समझाना पड़ेगा कि भाई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी। हमारे इधर संजीव सांगी है जो बोलते हैं कि पूरा का पूरा कलकत्ता में हमारा ऑफिस लगा हुआ है, तो मतलब वो सामने वाला यूएस वाला आदमी सोचता है कि वाह पूरा दीदी इनके साथ ही बैठता है, मतलब तो ऐसा टाइप का पूरा माहौल बनाना ज़रूरी है फॉर एग्जांपल। तो अब इन केस आप तो स्टार्टअप्स देख रहे हो, स्टार्टअप्स तो एकदम जीरो से शुरू हो रहे हैं, स्टिल दे आर एबल टू गेट इंटरनेशनल क्लाइंट्स। तो व्हाट इज दैट टॉप 3 और टॉप 5 थिंग्स दैट सीए शुड डू सो दैट दे कैन नाउ रीच आउट टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स? सो एक चीज़ अर्पित भाई, आई मस्ट से दैट आज की तारीख में कोई भी बिजनेस मॉडल नॉन टेक नहीं रहा है। सो एक चीज़ जो हम लोग आईसीआई के साथ अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं, आपकी रीजनल समिट वगैरह में देखा है कि हमारा एक माइंडसेट है ना कि हम क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सपर्ट हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस को आउटसोर्स करके चला लेंगे। ये माइंडसेट कहीं ना कहीं मतलब इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। सो वन थिंग इज, मोस्ट ऑफ यू व्हेन यू आर डीलिंग विद फाइनेंशियल सर्विसेज एडवाइजरी, ट्रांजेक्शन एडवाइजरी, कंप्लायंसेस, वेल्थ प्लानिंग, one thing for sure is you figure out what are the kind of existing or upcoming technology जो आपके business models को amplify कर सकता है. So you cannot grow without taking technology as a lever. So that is one thing. और आपको लगता होगा कि भैया ICAI की कोई कोर्स में तो हम टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ते थे, AI क्यों पढ़े? मेरे को तो बताया कि you have a chart, you have a committee exclusively for AI now at ICAI. So I think technology is one thing that you should not discard. Second important thing मैं अर्पित भाई बता दूँ, I used to deal couple of startups today while I was coming. When they are getting investments, FDIs and PE funds from outside, lot of strategic knowledge and process advisory is missing in the local ecosystems. आज की तारीख में you will be very very comfortable working with Indian laws, Indian regulatory systems and others, but थोड़ा सा आपकी कुछ partners या associates या system के माध्यम से wealth तो आज भी 80% startup ecosystem से बाहर से आ रहा है। तो अगर जहाँ से कैपिटल मोबिलाइज हो रहा है वहाँ की स्टैट्यूटरी इकोसिस्टम्स के बारे में आप थोड़े सेंसिटाइज नहीं होंगे, तो यू विल लूज अ चंक ऑफ मनी व्हिच इज कमिंग टू ट्रांजैक्शन एडवाइजरी इन दिस कंट्री, राइट? तो एक चीज हाउ बेटर यू कैन अडॉप्ट टेक्नोलॉजी एज अ टूल. Second, can some of your stakeholders or partners or associates could specialize in certain geographies from which the capital is coming to Indian startup ecosystem and Indian GCCs? क्योंकि without that you cannot repatriate things, right? तो ये दो चीज़ मुझे एक मिसिंग लिंक लगता है. और तीसरा जो एक सबसे important चीज़ यही है कि I think we need to celebrate some of these CAs who have done good servicing clients outside. Once we start highlighting and celebrating some success stories, हमारे देश में इंस्पिरेशन से ज़्यादा जलन काम करता है, राइट? वंस यू स्टार्ट डूइंग ईचिंग इनटू दैट कि ओके लुक
they moved out from domestic market, went out, great confidence, cleared value propositions, then a lot of these people will help you. So I think technology as a lever. How do you also specialize in the regulatory aspects of outside? And the third important thing is, how do we celebrate the early success? जो सर कह रहे हैं ना कि 45 की उम्र में उन्होंने सरेंडर कर दिया और कहा कि मैं ये कर सकता हूँ. I think we need to celebrate little bit of early success. I think 10 से 100 होने में टाइम नहीं लगेगा अर्पित भाई. वाह. श्वेतांग भाई, आप बोलना चाह रहे थे, मैं को आपसे यही पूछना था सर इसमें नेक्स्ट कि जीसीसी में आपको ऐसा क्या लगता है कि विच इज़ द मोस्ट फेवरेबल, सॉरी, गिफ्ट सिटी में क्या फेवरेबल लगता है, क्योंकि आप तो 2021 से हो, आपके लिए तो एकदम बोलते ना क्लोजेस्ट टू योर हार्ट है. इसके अलावा आपने कुछ एक्सप्लोर किया भी नहीं है शायद, या किया था आपने, एनालिसिस किया था सर? यस, एक्चुअली गिफ्ट सिटी तो हमारे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है, कंट्री के लिए तो है ही है, और लेकिन हमारे लिए और जो कुछ भी कमी रह गई थी साजिब सर और उनकी कमेटी ने पूरी भी कर ली है कि भाई हम ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें. इन्होंने जो बात कही ना 0 to 1, ये दो तरीके से बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि 0 to 1 है ना, वो इन्फेंट मोर्टालिटी जो प्रॉब्लम था ना हमारा 1976 के वक्त, उस टाइप का होता है, और उस टाइम पर माँ और बच्चा दोनों मर सकते हैं. ये जो इस एग्ज़ाम से, मैं सीए नहीं हुआ था ना, तब तक मुझे ये था कि सीए से कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, और मैं 10th तक तो संस्कृत पाठशाला में पढ़ा था, 11th में आके ABCD मैथ सीखा था, तो मेरे लिए तो सीए की एग्ज़ाम और चैलेंजिंग थी. लेकिन जब मैंने एंटरप्रेन्योर वाली एग्ज़ाम पिछले 4 साल पास की, तो मुझे लगा कि अगर मैं रिवर्स 5 साल जाता हूँ तो मैं 10 बार मुझे कोई पूछेगा, मैं 10 के 10 बार सोचूंगा मैं ये धंधा नहीं करूँगा. ये मैं क्लियर आपको बोलता हूँ कि इट्स अ वेरी पेनफुल जर्नी, जिसमें मैंने कहा जो आपका क्रिएशन है बच्चा, वो भी मर सकता है, और एज अ मदर मैं भी मर सकता हूँ. तो ये जो रिस्क है उसको हम कैसे एलिमिनेट करें, क्योंकि मेरे मरने का एक रीज़न मैं बताता हूँ जिसको सीए इंस्टीट्यूट बचा सकती थी. मैं आपको सीरियसली बोलता हूँ. अब हुआ क्या, कंपनी तो पैसा इकट्ठा करके शुरू कर ली, सब कुछ लगा दिया, फिर सोचा था कि भाई बैंक से भी कुछ मिल जाएगा. अब इश्यू ये हुआ कि बैंक से पैसे लेने गया, आई हैव माई एसेट्स एंड एवरीथिंग. बैंक ने कहा आज तक तो तुम भाई सीओपी थ्रू कमा रहे थे, वो तो तुमने सरेंडर कर दिया, और अब तो तुम खर्चे की फैक्ट्री हो, तो तुम्हें पैसा कौन देगा. तो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग था ना, ये समय था. तो हमें कुछ ऐसा रास्ता जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि भाई आप अगर 20-25 लोग कुछ करके अदर देन प्रैक्टिस कंटिन्यू करके 75% कुछ भी एक रास्ता ढूंढ के ये चीज़ अगर कर लेते हैं तो बैंकिंग सपोर्ट सिस्टम तो मिलेगा. मैं ज़िंदगी में किसी से कुछ नहीं मांगता था, लेकिन मेरे जो स्थिति थी, भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं मांगता ही फिरता रहता था 4 साल. मैं व्हाट आई एम एक्चुअली सजेस्टिंग, तो ये बैरियर को हमें किसी न किसी तरीके से सॉल्व करना है. और फ्यूचर के लिए तो जैसे मैं अगर पाठशाला से सीए हुआ तो मैंने 350 को सीए किया, अब ये एग्ज़ाम से अगर मैं एंटरप्रेन्योर हुआ हूँ तो आई एम रेडी टू 1000 पीपल कि वो भी ये कर सके. आई विल बी देयर टू सपोर्ट देम, और उनको मैं पैसों की कमी नहीं रहने दूँगा. ये मैं आपको बोलता हूँ. यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें एक एक दिक्कत पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ सक्सेसफुल होने के बाद कि मैं पिछले 5 साल रिवर्स होकर 10 बार ना बोलूँगा, तो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हमारी नेक्स्ट कमिंग कम्युनिटी को क्या करना है. प्लीज सर आपके देखिए, गारंटी तो LIC भी नहीं देती है लेकिन आई विल बी देयर टू सपोर्ट, क्योंकि मैं चाहूँगा वो पेन से कोई भी पास नहीं हो. और GCC के लिए इतना रिस्क नहीं है जो हमने उठाया, वो तो एक अलग चीज़ थी. प्लीज सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो 5 साल पहले अगर कोई फेल होता था ना, लोग उसको गाली देते थे, टाबू देखते थे. अभी अगर आप कोशिश करके फेल नहीं हुए, आजकल टर्मिनोलॉजी आ गया, पीवट के शब्द इस्तेमाल करते, नहीं बोलते फेल हुआ, पीवट हो गया. आप अगर बायो में लिखोगे ना, मेरे पास ये कोशिश करके सक्सेसफुल नहीं होने का अनुभव है, यू आर ट्रीटेड लाइक ए 3 स्टार्स, राइट. सो द सोसाइटी इज चेंजिंग, सोसाइटी इज चेंजिंग. आई थिंक टुडे द सोसाइटी इज वैल्यूइंग योर एक्सपीरियंशियल लर्निंग. सक्सेस का लर्निंग हो या फेलियर का लर्निंग हो, फर्क नहीं पड़ता. हम लोग गवर्नमेंट में भी फाइनेंशियल क्रेडिट के सिस्टम बनाते हैं, तो मैंने अभी रिसेंटली कहा फाइनेंशियल सेक्रेटरीज को कि भैया हम लोग एक गाइडलाइन बनाते हैं कि अगर कोई फाउंडर ट्राई करके फेल होता है, लेकिन अगर अगले बार आता है और बोलता है कि मैंने सीखा ये और मेरे सीख से बाकियों को ये समय बच सकता है, तो हमें उसको प्रायोरिटी फंडिंग करना चाहिए. तो शुरू में तो ऑडिटर बोला था कि ऐसा कभी होता है, बट देन वी सक्सीडेड इन डूइंग दैट.
यू नो. सो आई थिंक अगर आप ट्राई करोगे तो आपको आजकल कोई गाली को नहीं देगा कोई. सर आपने क्वेश्चन पूछा ना, तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ. ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ICI WTO जो कमेटी है हमारी जिसके अंदर ये सारा हो रहा है, उनके चेयरमैन अभय जी छाजेड़ हैं. सर आप कभी भी उनके पास पहुँचो, ही विल एंश्योर, वी कॉल हिम द प्रिंस ऑफ भोपाल ऑल्सो, MP. वो भोपाल से आते हैं, तो वो सर कुछ चांस ही नहीं है. मतलब आप 10 मिनट भी बैठोगे ना, वो इंश्योर करेंगे कि आप फेल नहीं हो जाओ. और इनकेस हो गए तो हमारे ज्ञानचंद मिश्रा है जो इंसॉल्वेंसी कमेटी के अध्यक्ष हैं. मेरी बात सर पूरा आर्मी लेके आए हम, ICI पूरा आर्मी लेके आए. संजीव ने बोला कि सब के सब हमको इधर सब हो जाना चाहिए. तो आप देखो. और फिर उसके बाद सबसे एक टॉल पर्सनालिटी विशाल दोषी भी हैं. तो जैसे ही अगर आपको लगे कि कहीं भी कुछ स्लिप हो रहा है, तो ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऐसी सब चीज़ें इकोसिस्टम में इतनी उलझने पैदा कर देंगे कि आपका सर्वाइवल पॉसिबल है. हो ही नहीं सकता कि आपके बगैर आगे इकोसिस्टम चले. फिर हम सर मैं तो बैठा ही हूँ, मैं दोनों के वाइस चेयरमैन हूँ. MSME का कर रहे हैं, आई हब में RRC कर रहे हैं. तो जैसे इन्होंने कहा कि थिंग्स आर इवॉल्विंग, थिंग्स आर चेंजिंग, माइंडसेट बहुत चेंज हो रहा है. पीपल हु आर ट्राइंग अगेन आर नॉट कंसिडर्ड एज फेलियर्स. इनफैक्ट हमारी मार्कशीट भी अब ये नहीं बोलती कि आप फेल हो, आप अनसक्सेसफुल हो. सो यू नो दैट इज़ द ग्रेट शिफ्ट दैट वी सीन इन माइंडसेट. चूंकि हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, नरेश भाई आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि बिजनेसमैन हो आप. सपोज यू वर टू सेट अप समथिंग इन GCC, इन गिफ्ट सिटी फॉर एग्जाम्पल, एक GCC बनाना हो, तो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू सी एंड हाउ डू यू थिंक कि कैसे इसको मिटिगेट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मैन पावर एंड इन टर्म्स ऑफ फिनेंस? Arpit bhai, financing infra projects like GCC is always full of challenges. क्योंकि अगर हम PFC के एंगल से बात करते हैं तो our assets जो हैं हमारे, जो advances हैं, they are mostly very long tenure advances of more than 15 to 20 years. And our liabilities जो हैं, जो हम finance source कर रहे हैं, these are mostly having maturities of around 5 to 7 years. तो एक तो ये major risk रहता है always. Second thing जो है कि मल्टीपल अप्रूवल्स हैं, प्रोसीजरल डिलेज हैं, एंड टेक्नोलॉजी रिडंडेंसी जो है कि जब आई थिंक इनिशियली दयानिवास जी ने जो बताया कि विद इन नेक्स्ट 3 years अभी हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं मे बी वो रिडंडेंट हो जाएगी. तो इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपेक्स एट वेरी लेसर इंटरवल. तो ये सब चैलेंजेस आर समथिंग न्यू for the concept like GCC, and the projects which are AI driven, तो उसके अंदर और भी इंफ्रा मतलब कैपेक्स जो है वो अपने आप में एक बिग चैलेंज है, क्योंकि एवरी लेसर फ्रीक्वेंट इंटरवल पे वी नीड मेजर कैपेक्स टू बी डन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड इफ यू टॉक अबाउट हाउ वी मिटिगेट द रिस्क, लाइक ये सब प्रोजेक्ट्स जब हम फाइनेंस करते हैं तो वी टेक इनटू अकाउंट मेजरली अभी हम जो प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर माइलस्टोन बेस्ड डिसबर्समेंट हम लोग कर रहे हैं, डेसरा प्रोविज़न रहता है वो हम कर रहे हैं, एंड परफॉर्मेंस गारंटीज़ रहती हैं. तो ये सब चीज़ों को हम वी मेक इट द पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एग्रीमेंट टू मिटिगेट द रिस्क एज मच एज पॉसिबल. I think very crucial, very critical point that you touched on in terms of how do you approach financing. आपने 2-3 चीज़ें जो आपने बताई है. So overall, मतलब given the perspective you see a huge development happening in this area, what are the other promising areas that you see? क्योंकि green power, green technology जो है उसमें आप लोग I'm sure you are having a huge interest now. Any quick take on how do we promote green through this, sustainability through this? Sure. Arpit bhai, GCC is not something only about the offices and office infrastructure or setting up business only. It has to be looked into entirety. When we set up a GCC, it has with its green mobility that we have to provide. Housing and related infra we have to provide. So when we talk about the financing of renewable energy projects, PFC has more than 60 gigawatts of renewable finance projects that we have financed across the country.
and we are currently exploring the venues. Like we are the first government NBFC to set up a dedicated company in Gift City. We have already set up, and we would be soon starting the functioning. अच्छा, आप लोग का presence already है इधर? We have not started operations yet, but we have set up the company and have our infrastructure in place. Okay. So very soon we'll be coming up with the products. So जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट में बैठे हैं, आपको अगर कहीं करना है तो Yes, we are here in Gift City. आप लोग के पास एकदम instant connect है thanks to this seminar that you can reach out for any green projects that you need funding for. And when we talk about like funding projects and GCC, then I don't think there could be any other better place than Gift City to organize this discussion. वाह सर, डोमेस्टिक हमने समझ लिया, क्या होना चाहिए समझ लिया, पॉलिसी पे थोड़ा सा आते हैं कि सर श्वेतांग भाई, इफ़ यू कैन क्विकली आंसर जो मैंने HM को पूछा था कि हाउ कैन वी इन टू डोमेस्टिक मार्केट, मतलब व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द एरियाज इन विच वी कैन नाउ टैप ग्लोबल मार्केट. अभय भाई हमको हमेशा बोलते आए कि क्योंकि ही इज़ फ्रॉम अदर लॉज ऑल्सो, जैसे 7 लॉज आपने बोला ना, वो सातों के मालिक ये हैं. तो अभय छाजेड़ जी हमको हर बार बोलते हैं कि US में बहुत रिसेशन है, CPAs हारे जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं. अच्छा, आपको मोमेंटोस भी देना है तो मुझे थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा. तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन. यस सर, तो उनका कहना है कि US में इतने सारे लेड बैक हो रहे हैं, सब CPAs रिज़ाइन कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ रही. तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन कौन सी एरियाज और हाउ कैन वी टैप द ग्लोबल मार्केट्स? देखिए, ग्लोबल OM हमारा तो एक मूवमेंट कंपनी का है, गो ग्लोबल विथ गिफ्ट. क्या है? गो ग्लोबल विथ गिफ्ट. गो ग्लोबल विथ गिफ्ट. हाँ, और गिफ्ट लेके जाओ बाहर. नहीं, गिफ्ट सिटी को. अच्छा, गिफ्ट सिटी से जाओ. अच्छा. अगर आपको ग्लोबल बनना है तो आप गिफ्ट सिटी थ्रू होते हो. और ये भी आपने अच्छा आइडिया दिया, गिफ्ट लेके जाओ. वो तो ऑलवेज होता है. अब देखिए, आज की दुनिया ने, कोरोना ने तो एक चीज़ सिखाई कि प्रेजेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट. अब दुनिया ने, टेक्नोलॉजी ने हमें सिखाया कि लैंग्वेज फ्री हो गई है दुनिया. तो हमें सबसे पहला एक माइंडसेट बदलना है कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है ना, इंग्लिश वाले, उससे बाहर पूरा वैक्यूम खुला पड़ा है. वाह. तो हम फोकस कर रहे हैं मल्टी लैंग्वेज मार्केटिंग कंटेंट्स पर. मेरे यहाँ एक मीडिया टीम है. अब आपको जो 6 रिक्वायर्ड चीज़ चाहिए वो भी बोलता हूँ, क्योंकि यू नीड टू कम्युनिकेट योर प्रोडक्ट्स इन सिंपल योर. तो हमने स्पेनिश में बनाया है, हम जर्मनी में बना रहे हैं. तो मज़ा क्या है, हम इंडियन ही हर जगह जाके कॉम्पिटिट दूसरे को ही करते हैं. मुझे अनिकेत भाई अगर प्रेजेंस ही है, लेकिन वो जापान जाते हैं. वरना जनरली मैंने अगर 10 टूर सुनी हो CA लोगों की तो कॉमनवेल्थ में ही होगी, मोर देन 90%. तो पहला मैंने अपनी टीम को बोला है कि भाई मुझे अटैक करना है यूरोप पर, रशिया पर. तुम मुझे वो टेक्नोलॉजी सब पहन के सुनते हैं ना, वो ला दो. मैं रशियन मूवी देखना शुरू करूँगा, मैं जर्मन मूवी देखना शुरू, मैं अपने आप को यूज टू करूँगा कि वो आदमी जैसे बोलता है मैं उसकी बात समझ लूँ और उसको समझाओ. आप मेरी बात समझिए, हम अमेरिका जाके जितना खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं ना, उससे कम खर्चे में यहाँ बैठे बैठे मूवी देख के एक्सपर्ट बन जाएंगे. वाह. कहने का मेरा मतलब है, हमें ऑलवेज वहाँ जाना है जहाँ कोई नहीं है. और देखिए, व्हाट इज़ द बिजनेस. मुझे लोगों की दिक्कतें ढूंढनी है. वो धंधा भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, और सोचना है ये दिक्कत दूर करने के वो पैसा कितना देगा. कंज्यूमर सरप्लस जो हम इकोनॉमिक्स में बोलते थे. तो हर ऐसी प्रोडक्ट को हम डेवलप करते हैं जो इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है. हमें 95 में पता नहीं था कि मोबाइल जिंदगी में काम की चीज़ है, लेकिन अब पता चला कि वो तो जी नहीं सकते. तो अब हमें इंडस्ट्री को जाके समझाना पड़ेगा कि क्या क्या. मैं सिर्फ एक रियल एग्जांपल देता हूँ जो CA बिजनेस से रिलेटेड. हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, हम P&L बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लायंस स्टेटमेंट्स है, उससे कोई मैनेजरियल डिसीजन लिए नहीं जाते हैं, और उससे हमें पैसे भी मिलते हैं ऑडिट से. लेकिन हम सिर्फ रेशियो एनालिसिस और वेरिएंस एनालिसिस पर 3 लेयर प्रोडक्ट बनाइए कि भाई बिजनेस हेल्थ रिपोर्ट कार्ड मंथली, फिर उसको ये करेंगे तो 10,000 चार्ज करेंगे मंथली, ये करेंगे तो 15,000 चार्ज करेंगे. वी आर चार्जिंग 1,85,000 रुपीज़ टू क्लाइंट एंड दे आर पेइंग टू अस. अब उसको क्या समझा रहा है, तुम्हारा भाई P&L बैलेंस शीट कुछ काम का नहीं, वो इनकम टैक्स के काम का है, बराबर है. लेकिन ये रेशियो एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस हम सब पढ़े हैं, लेकिन हमने जिंदगी में कमाने के लिए यूज़ नहीं किया है. ये मेरी बात समझिए, इट हैज़ वैल्यू. और मैं
अगले अगर 4 साल बाद साजिद जी या कोई भी मुझे फिर से बुलाएगा, मैं विद फिगर बोलूँगा कि ये प्रोडक्ट से मैंने कितना रुपया बनाया है। क्यों पैसा मिलेगा? क्योंकि वो वैल्यू एडिशन क्रिएट करता है बिजनेस के लिए। हम उसको समझाते हैं कि भाई क्या तुम्हें अच्छा है, तुम्हें क्या खराब है, किसको नॉर्मल बनाना है, किसको चेंज करना है, व्हाट आर इंटरनल अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट आर एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़। तो प्रोडक्ट्स हमें, अब देखिए मैं टीचर रहा हूँ, मैंने हर सब्जेक्ट 50 बार पढ़ाया है, तो मैं ऑलवेज बोलता था कॉस्टिंग इज़ द पैसा मेकिंग मशीनरी, लेकिन हम सब पास होने के अलावा यूज़ ही नहीं करते। वाह, आप सोचिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हम बेस्ट बाय क्वांटिटी कर सकते हैं, बेस्ट लेबर कॉस्ट कर सकते हैं, लेबर ओवरहेड। हमने कब अपनी प्रैक्टिस में ये सर्विस का पैसा चार्ज किया? हम ये पैसा, अब उसको भी पता नहीं है ये हो सकता है, हमें पता है, लेकिन हम बोलते हैं। अब एक्चुअली होता है क्या है सर जी, एक और चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि पाठशाला में पढ़ा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। भीम अर्जुन और सहदेव में एक डिफरेंस था। क्या था कि सहदेव को एक ज्ञान था कि फ्यूचर पता चल जाता था, लेकिन भगवान ने लिमिट किया कि तुम्हें कोई पूछे ना तभी जवाब देना है, बराबर है। तो पैनलिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो सहदेव होते हैं अगर ये पूछेंगे ना तभी हम बोल पाएंगे। जिस दिन इंस्टीट्यूट मुझे भीम अर्जुन वाला रोल देगी ना, आई विल बी मोर यूजफुल टू यू क्योंकि उस वक्त में जो चाहे वो हथियार उठा के इसी को भी अटैक कर सकता हूँ। इसमें हमारे यहीं से मैं खत्म करता हूँ। हमारे प्रेसिडेंट साहब नंदा जी हमेशा एक डायलॉग मारते हैं, मतलब हम लोग कभी भी ऐसा कोई डायलॉग मारते हैं, भीम अर्जुन आपने बोला, देखो क्या चमत्कार हो गया, कल तक तो जा अमरूद आज अनार हो गया। तो यू नो ऐसे ही होता है, फ़र्क पड़ जाता है, सब अपने इवॉल्व होते हैं। और इवोल्यूशन की जब बात करते हैं तो HM हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। आई एम द वाइस चेयरमैन ऑफ द MSME कमेटी, और हम लोग एक पूरा एक बैच लेके जाते हैं जो आई हब में इंक्यूबेशन के लिए, जो इंक्यूबेशन नहीं हो पाते हैं बट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक एक्सपोजर देने के लिए, एक RRC चलती है, वो करते हैं। सर, फाइनल क्वेश्चन टू यू कि यू नो व्हाट कैन वी डू इन दिस GCC इकोसिस्टम दैट कैन इवॉल्व द माइंडसेट, क्योंकि इन्होंने तो 50 लोग को जोड़ लिए बट ये लोग अभी भी नहीं जोड़ पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो MDP, एग्रीगेशन और कहीं ना कहीं डेलीगेशन, मतलब गिफ्ट लेके बाहर जाना, ये सब हमको समझना है। तो दो रोल चीज आप लोग के लिए है, इमीडिएटली बताऊं। थैंक्स टू अर्पित भाई एंड MSME कमिटीज एंड अदर्स। एवरी मंथ हम लोग पैन इंडिया से लगभग 50 CAs को थ्रू ICAI हब में बुलाते हैं 3 दिन के लिए। और अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, मैं आपको इनवाइट करूंगा, दोज ऑफ यू हु वांट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम इज 4th, 5th एंड 6th। हम लोग उसमें वी हैव ए वेरी सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जिसके माध्यम से हम आप सबको एजुकेट करते हैं। Please put your hands together and welcome our chief guest and president of ICAI, CA Nanda sir. एंड उसमें थोड़े से प्रोग्राम्स हम लोग अभी GCC को लेकर भी मॉडल बनाए हैं। तो एक बार मैं अर्पित भाई से इन कोऑर्डिनेशन विद हिम विल क्रिएट अ स्पेशल मॉडल फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑल ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू GCC। तो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप साइड में तो कर ही रहे थे कि CAs को एंटरप्रेन्योर कैसे बनाएं, और मैं अनुरोध करता हूँ आप में से कुछ लोग अगर अपकमिंग बैच में भी 4th, 5th, 6th को आएँ तो हम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग जरूर करेंगे, बट वी विल डू अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर स्किल्स फॉर GCC. So that is my promise to ICAI. All right. So with this, let's have an end to this panel discussion. We've got all the dignitaries over here. May I request all of you to please, अगर अच्छा लगे तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें और धन्यवाद करें हम हमारे पैनलिस्ट का, महंता सर, श्वेतांग भाई एंड नरेश भाई. I request quickly if you can give the mementos. Yes, requesting CA Dayaniwas Sharma sir and CA Anuj Goyal sir to felicitate the faculties for the session. Also requesting CA Arpit Kabra sir to join in. We again thank all the faculties for accepting to shift, as this was the last session for the day and they came and I also request respected Central Council member CA Anuj Goyal sir to please come forward and share his closing remarks very quickly and the formal vote of thanks for the session. Please sir. Under the leadership of CGS Nanda sir, our Honorable President sir, we have taken this wonderful initiative to have this group to promote India as accounting GCC. So a very, very big round of applause to President sir. And of course, we are having the chairman of, convener of the DITS and WTO Directorate, Abhay Hajarji, under whose leadership we are having this group, and Sanjeev Sanghi ji is the convener of this group. So thank you very much
Abhay Chajarji and Sanjeev Sanghi ji for this great initiative. I think it would go a long way for the chartered accountants, particularly the young chartered accountants, and of course India, how we can do the export of services in a great way in other parts of the world other than USA also. So I think it is a need of hour, and we are really doing something very, very concrete for our young generation of the chartered accountants and for the country as a whole, to see that how we can have the export of services in the best possible manner. We are having a program director Purushottam Khandelwal ji, Vishal Doshi ji, and of course the way Arpit Kabra ji, एक भी delegate, I was seeing that कोई delegate मेरे अलावा कोई delegate hall से बाहर नहीं गया. So the way he has conducted this panel discussion, something really great. So a very, very big round of applause to Arpit Kabra ji. And of course our senior Central Council member Dayaniwas Sharma ji, who is of course the chairman of DAB, and Arpit ji is the vice chairman of DAB and the member of the examination committee. Arpit ji and President sir is the chairman of the examination committee. He has made my life very difficult. And now thrice in a year the exams are there. And September is the testing exam. In the month of November, we have to place all those chartered accountants. But I think GCC and all of you are here to see that how you can avail that wonderful opportunity to avail the services of the best of chartered accountants. And we will provide you the chartered accountants in each and every nook and corner of the country. Tier A city, Tier B, Tier C, according to the cost efficiency. We will provide the chartered accountants. You want 100 chartered accountants, 500 chartered accountants, 1,000 chartered accountants at a particular place, we will provide you. And not only newly qualified chartered accountants, if you do want the chartered accountants with experience of 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, 30 years, we are there as the chairman of committee for members in industry and business, because the president sir has given me this wonderful opportunity, and with the help and support of all of you, we will certainly do something very, very concrete. GC Misra ji is also here, who is a member of this group. And we in the council are trying our level best to see that how we can really do something very, very concrete for those chartered accountants who want to do something very concrete in GCC. And there is a great myth that if I am in practice, I can't form a GCC. We are very well having a provision that I can be the whole-time director and the chairman and MD of the Management Consultancy Private Limited Company. I think under this ambit also we can do that GCC work. You can see the object clause, Sanghi ji. You can very well communicate to all the chartered accountants. And in addition to that, even if that management consultancy is not coming within that particular framework, you can be director, you can be chairman. If you don't want to surrender your COP, or then you can very well have association there as the director or as the chairman. We are really grateful to our honorable, very, very prominent panelists, Naresh Kella ji, who is the director of the PFC also, and is an entrepreneur also. A very, very big round of applause, friends, to Naresh Kella ji. We are really grateful to Swetang Pandya ji, who is the CFO of Swetang Consultancy Services, for, I think, teaching us in a great way, because the in and outs which he has learnt, he has shared with all of us. He wants to see that how we all can be the millionaire and billionaires with the help and support of him. A very, very big round of applause, friends. And of course, Hiranmay ji, Mahanta ji, CEO of iHub Gujarat, for being very, very active and communicating each and every in and out, how we can do really something great in the GCC. And friends, under the leadership of the President sir, Nanda sir, we are having an initiative of the 40 under 40 awards. And there are a lot number of chartered accountants who are in industry. All of you who are in GCC are members in industry.
because either you are the director, whole-time director, or the CMD, so you are the members in industry, and up to the age of 40 years, the chartered accountants who do think that they are really doing something good for the profession can very well get themselves enrolled for the 40 under 40. And in addition to that, अगर आपके 40 साल से ऊपर की एज है, तो भी ICAI awards में you are very well eligible to get yourself registered. So I will request all of you, because you are the brand ambassadors, to please come forward and nominate yourselves and your nears and dears in that. I welcome Aniket Talati ji, one of the youngest president of the Institute of Chartered Accountants of India, from Gujarat itself, from Ahmedabad itself. We have produced Narendra Modi ji as Prime Minister and Aniket Talati ji as the President. So a very, very big round of applause to Aniket Talati ji. Thank you very much.